Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are doing well. बच्चे, first of all, let's pray to God and thank Him for whatever He has given to us. All of you, join your hands and start prayer. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। Students, I welcome you all in today's EVS class. बच्चे, आज हम चैप्टर 10 करेंगे and the name of the chapter is Transport we use. Today we will do its part 1. Clear? So, सबसे पहले तो आपको बताओ जी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? What is transport? बताइए, पता है आपको? Transport is the means by which people or goods move from one place to another. जब लोग या सामान, गुड्स मतलब सामान, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस तरीके को ट्रांसपोर्ट कहते हैं. See the picture. It is given in your book on page number 51. You have to name it. आपको पता है इसका नाम क्या है? और एक हिंट भी गिवन है आपकी बुक में कि ये लैंड और वाटर दोनों पर चल सकती है. पता है आपको नाम? मैं बताती हूँ. इट्स नेम इज होवरक्राफ्ट. क्या नाम है इसका? होवरक्राफ्ट. HOVERCRAFT. क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप कैसे जाते हो? या तो आप बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, या फिर कार से भी जाते हो. और अपने ही सिटी में अगर हमें जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं? स्कूटर से जाते हैं. और अगर नजदीक होता है तो आप अपनी साइकिल पर भी जा सकते हो, है ना? और स्कूल कैसे आते थे आप? आजकल तो आप स्कूल आ नहीं रहे हो, लेकिन जब आप स्कूल आते थे या जब स्कूल आओगे तो कैसे? या तो आप स्कूल वैन से आओगे या फिर ऑटो रिक्शा, रिक्शा. तो दीज ऑल आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सभी क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज हम इस चैप्टर में डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. बेटा, let's do the new words first. First word is passengers. 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 Passengers किसको बोलते हैं? People who move from one place to another. वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैसेंजर, यात्री. सेकेंड वर्ड इज voyage. 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 Voyage means a journey by water. जब हम पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, that is called voyage. Clear? Third word is submarines. SUBMARINES. सबमरीन्स. सबमरीन्स मतलब वो शिप्स जो कि पानी के अंदर चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सबमरीन्स. फोर्थ वर्ड इज फ्लाइट.
flight, a journey by air. जब हम एयरवे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, that is called flight. So these are the 4 new words. You have to write down these words in your notebook. Okay? Students, let's start the reading of the chapter. You have to read after me. Keep your finger on the line which I will read. Transport is a means by which people and goods can be moved from one place to another. In the olden times, there were no means of transport and people used to move on foot from one place to another. Can you imagine walking from Delhi to Chennai? There were no vehicles like buses and cars, and there were no proper roads. In those days, if people had to cross a river, they did so by tying logs of wood together with a rope and making a raft. See the picture? This is the picture of raft. For many years, people lived like this, and then the wheel was invented. The wheels were fitted to carts, and the carts were drawn by animals like horses, bullocks, and donkeys. They were used to transport people and goods to different places. So, we can say that carts were the first means of transport. People who travel by means of transport are called passengers. क्या कहते हैं उनको? Passengers. बच्चे, let's start page number 51. Okay? First one, आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट क्या है. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था. ट्रांसपोर्ट इज मीन्स बाय विच people and goods move from one place to another. वो तरीका जिससे कि लोग और सामान, गुड्स मतलब सामान, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस तरीके को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. क्लियर? अब पुराने समय की अगर हम बात करें, इन ओल्डन टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे कि आजकल हम बसेस, कार, ट्रेन इतना कुछ यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन पुराने समय में ना तो बसेस थी ना कोई ट्रेन थी. क्या करते थे लोग? पीपल यूज टू मूव ऑन फुट. और लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? पैदल. और उनको बहुत समय लगता था इसलिए जाने के लिए, क्योंकि उस समय ना तो कोई बस थी, ना कोई ट्रेन थी, और ना ही प्रॉपर रोड्स बनी हुई थी. और अगर उनको पानी के थ्रू जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करते थे? वो लकड़ी के गट्ठों को इकट्ठा करके राफ्ट बनाते थे, उनको बांधते थे और एक राफ्ट बनाते थे, और उस पर वो जाते थे, या फिर वो तैर कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. क्लियर? और ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि किसकी खोज नहीं हुई? यस, व्हील्स की. जब व्हील्स की खोज हो गई, उसके बाद क्या हुआ? कार्ट्स बनी. उसमें हम कार्ट्स को कौन चलाते थे? कौन से एनिमल्स को यूज करते थे हम, और आज भी करते हैं? डंकीज, horses and bullocks. और इस तरीके से कार्ड्स को यूज करना शुरू किया, मेक द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो बेटा वी कैन से कार्ड्स वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट डू वी कॉल देम? उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी हमने न्यू वर्ड्स में भी किया था. यस, पैसेंजर्स. तो अब आपको क्लियर हो गया ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर्स, और ओल्ड टाइम में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. बेसिकली देयर आर 3 types of transport: land transport, water transport and air transport. Basically there are 3 types of transport. 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट. 3 तरह के ट्रांसपोर्ट है. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. लैंड ट्रांसपोर्ट. In towns and cities, people need
faster means of transport to cover long distances. So, they use auto rickshaws, cars, scooters, buses and trains. The engine of these vehicles run on diesel, petrol or CNG. CNG means compressed natural gas. This is the full form of CNG. There are metro trains in Mumbai, Delhi, Jaipur, Hyderabad, Bengaluru and Kolkata. They travel on the ground, over the ground or below the ground. The metro rail is the fastest means of transport to travel within a city. Local trains in Mumbai are also popular. Just see the picture. This is the picture of metro train. This is bus and this is the picture of train. Name two means of land transport you use every day. Here you have to write down name of two means of land transport which you use every day. Okay? बच्चे, first of all we will discuss about land transport. Land transport क्या होता है? Vehicles that run on land. That is called land transport. आपने देखा होगा, आप खुद जाते हो, साइकिल यूज करते हो, पापा के साथ स्कूटर पे जाते हो या फिर कार में जाते हो. अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करना है तो हम बस से भी जाते हैं, कार से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं. तो दीज ऑल आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. अब ये जितने भी व्हीकल है, बसेस हैं, कार है और या ट्रेन है, स्कूटर है, ये कैसे चलते हैं? इनके इंजन अपने आप चलते रहते हैं? नहीं ना. हम क्या डलवाते हैं उसके अंदर? फ्यूल. कौन सा फ्यूल? आइदर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी. सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये तीनों तरह के जो फ्यूल्स हैं दे आर यूज्ड टू रन द व्हीकल्स. ओके. अब उसके बाद आपने मेट्रो ट्रेन के बारे में सुना है? आप में से कुछ बच्चों ने देखी भी होगी. आप दिल्ली गए हो, मेट्रो ट्रेन में बैठे हो, मजा आता है ना आपको, बहुत फास्ट चलती है ना. तो मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती हैं? दे रन ऑन द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड. ये जो ट्रेन्स होती हैं ये ग्राउंड पर, ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे चलती हैं. एंड दीज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल विद इन अ सिटी. एक ही सिटी में अगर हमने जाना है तो ये सबसे तेज मेथड होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का. और ये कौन कौन सी सिटी से मिलती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली. देखा है ना आपने? दिल्ली में तो अक्सर हम लोग जाते हैं तो हमने देखा भी होगा. क्लियर? व्हाट इज अ लेवल क्रॉसिंग? A level crossing is a place where a road and a railway track cross each other. The railway track has gates on both sides. When the train is coming, the gates are closed so that the traffic does not cross the railway track. After the train goes away, the gates are opened. The traffic then moves on. Now we will discuss level crossing. What is level crossing? आपके लिए न्यू वर्ड है, आपने फर्स्ट टाइम सुना है ना. मैं आपको समझाती हूँ. बच्चे, जब हम सेक्टर्स की साइड से भद्रकाली टेम्पल की तरफ जाते हैं, आप सभी जाते हो. आजकल तो कोरोना की वजह से हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन पहले जाते थे और आगे भी जाएंगे. तो जो लोग सेक्टर्स में रहते हैं वो लोग जब भद्रकाली टेम्पल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है बताइए रास्ते में? यस, रेलवे ट्रैक मिलता है. और सम टाइम हमें वहां रुकना पड़ता है. क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि वहां से ट्रेन क्रॉस कर रही होती है. जब ट्रेन क्रॉस हो जाती है तब क्या होता है? उसके बैरियर्स खुलते हैं और हम वहां से जाते हैं. क्लियर? तो ये क्या होता है? लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर अ रोड एंड अ रेलवे ट्रैक क्रॉस ईच अदर. वो जगह जहां पर रोड और रेलवे ट्रैक आपस में क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं लेवल क्रॉसिंग. क्लियर? अब आपको उसमें क्या होता है लेवल क्रॉसिंग के कि दोनों तरफ गेट्स लगे होते हैं
और जब ट्रेन के जाने का समय होता है तो गेट्स को बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक वहां से क्रॉस ना करे, और ट्रेन जाने के बाद उनको खोल दिया जाता है और ट्रैफिक वहां से क्रॉस करती है। क्लियर? आपको पता है ना, कुछ व्हीकल्स को एनिमल्स खींचते हैं, लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगा एंड कैमल कार्ट्स। और ये यूज कहाँ पर होते हैं बेटा? बेसिकली बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट वो यूज होते हैं विलेजेस में। क्यों? क्योंकि वहां पर रोड्स प्रॉपर बनी हुई नहीं होती और लोगों को डिस्टेंस भी थोड़ा कवर करना पड़ता है। क्लियर? हॉर्स एंड म्यूल्स एंड डंकीज दे आर ऑल्सो यूज इन हिली एरियाज टू कैरी द पीपल एंड लोड। ऐसे ही बेटा आपको मैंने कैमल तो सबने देखा होगा ना, ऊंट। आपको पता है कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज्यादा सैंड होता है, रेत होता है। कैमल उस पर आराम से चल लेता है एंड इट इज यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट्स व्हाई कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। क्लियर? वाटर ट्रांसपोर्ट। Water transport is the cheapest means of transport because we do not need to build roads. Only water is required. It is slower than road transport. Boats are used to cross lakes and rivers. Ships are used to transport people and goods from one state to another or between different countries. Steamers and motorboats are also other means of water transport. Submarines are ships which move under water. Just see the picture. This is the picture of submarine, and submarine is a ship that moves under water. Clear? And this is the picture of ship. A journey by water is called a voyage. Boats are rowed by hand using oars. Oars मतलब चप्पू. Sailboats are powered by wind. Motorboats, steamers, ship and submarines are powered by engines. Name a means of water transport you have used. अगर आपने कोई water transport means use किया है तो you have to write down name of that means of water transport. Okay? Now we will discuss about water transport. It is the cheapest means of transport. ये सबसे सस्ता, cheapest मतलब सस्ता means of transport है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई रोड की जरूरत नहीं पड़ती। We only need water. हमें वाटर चाहिए, नदियों में, लेक्स में और सीज में वाटर होता है। क्लियर? एंड इट इज स्लोअर देन लैंड ट्रांसपोर्ट, और ये उससे स्लो है। किससे स्लो है? इट इज स्लोअर देन लैंड ट्रांसपोर्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बोट, शिप, स्टीमर, मोटर बोट एंड सबमरीन। बोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस रिवर्स एंड लेक्स। हम लोग भी बोटिंग करते हैं ना, जब हम पिकनिक पर जाते हैं, करण लेक है करनाल में, तो वहां पर हम बोटिंग करते हैं। लेकिन शिप्स कहाँ यूज होते हैं? शिप्स आर यूज्ड इन सीज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्लियर? स्टीमर्स और जो हमारी मोटर बोट्स हैं, दे आर ऑल्सो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. Submarines are ships that move under water and a journey by water is called voyage. ठीक है? अब मुझे बताइए कि बोट्स कैसे चलती हैं? Yes, with the help of oars, जिसे हम चप्पू भी कहते हैं. But motor boats, steamers, ship and submarines are powered by engine. ये इंजन से चलते हैं. क्लियर? अब आपको क्लियर हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में? एयर ट्रांसपोर्ट. This is the fastest means of transport. It is also the most expensive. Expensive मतलब महंगा. Aeroplanes and helicopters are examples of air transport. An aeroplane needs a runway to land and take off. A journey by air is called a
फ्लाइट। जो हम जर्नी एयर से करते हैं उसे हम फ्लाइट कहते हैं। रॉकेट्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इनटू स्पेस। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। You have to write down answers of these questions. First one, have you ever traveled by an aeroplane? क्या आप कभी एरोप्लेन से कहीं गए हो? Yes और no. अगर गए हो तो yes, अगर नहीं गए हो तो no. Which airlines did you travel by? आपने कौन सी एयरलाइन से ट्रेवल किया था? Between which two places did you fly? आपने कौन से दो प्लेसेस के बीच में रास्ता तय किया था? What were the names of the airport you took off from and landed? आपको एयरपोर्ट्स के नाम लिखने हैं जहां से आपने प्लेन लिया था और जहां पर आपने लैंड किया था। ओके। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये सबसे महंगा भी है। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। समझ आया बच्चे? An aeroplane needs a runway to land and take off. लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एरोप्लेन को रनवे की जरूरत होती है। रनवे क्या होता है? रनवे इज अ स्पेशल ट्रैक जो कि सिर्फ एरोप्लेन्स के लिए बनाया जाता है। वो वहीं पर लैंड करते हैं और वहीं से ही टेक ऑफ करते हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट पीपल यूज मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाउएवर, modern means of transport that run on diesel and petrol have increased the amount of harmful gases like carbon dioxide in the air. This is called air pollution. This is very harmful because it heats up the earth and it will become very hot and uncomfortable to live on. Have you noticed that the temperature of many places in India is going up year after year? These harmful gases also cause a lot of breathing problems like asthma in people. बच्चे, अभी हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लाइक बसेस, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, इनमें क्या यूज होता है? वी यूज डीजल और पेट्रोल। और डीजल और पेट्रोल जब यूज होता है तो उनमें से जब वो व्हीकल्स चलते हैं हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो रही है, हमारी एयर गंदी हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मेकिंग एयर डर्टी by adding harmful gases like carbon dioxide in the air is called air pollution. Air pollution is very harmful. क्यों harmful है? क्योंकि इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारा रहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, अनकंफर्टेबल। आप देखते भी होंगे इंडिया की कई जगह पर टेम्परेचर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी हो रही हैं लाइक अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। द व्हीकल्स ऑन द रोड्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। द व्हीकल्स मेक अ लॉट ऑफ साउंड। पीपल लिविंग नियर हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस get disturbed by the loud noise made by cars, buses, trucks, planes and trains. The noise made by horns of vehicles can cause deafness. This disturbance which people experience is called noise pollution. Can you think of two ways to decrease air and noise pollution? The vehicles on the roads have increased day by day. आजकल व्हीकल्स रोड पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे घर में एक कार होती थी, अब दो कारें होने लगी हैं, दो व्हीकल्स होते हैं हमारे घर में। अब इन व्हीकल्स के चलने से क्या होता है? शोर होता है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है, हमने पढ़ा कि स्मोक निकलता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। लेकिन जो हॉर्न्स बजते हैं, उन हॉर्न्स के बजने से जो शोर होता है उसकी वजह से होता है नॉइज पोल्यूशन।
जो लोग हाईवेज के नजदीक रहते हैं, एयरपोर्ट्स के नजदीक रहते हैं या रेलवे स्टेशन के नजदीक रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं बिकॉज ऑफ द साउंड। जो साउंड आती है किसके चलने से? व्हीकल्स के चलने से, एरोप्लेन्स के चलने से, ट्रेन्स के चलने से, बसेस, कार, स्कूटर। तो उस शोर की वजह से आजकल लोगों के अंदर डेफनेस मतलब बहरापन भी हो रहा है। तो व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? द डिस्टर्बेंस दैट पीपल experience due to noise of vehicles is called noise pollution. वो डिस्टर्बेंस जो लोग फेस कर रहे हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द हॉर्न्स, बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, एंड दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो हमें नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। कैन यू टेल मी 2 ways by which we can reduce air and noise pollution? Very good. Number 1, we should use vehicles only when required. अगर हमें नजदीक जाना है तो हमें व्हीकल नहीं यूज करना है। We should prefer to go on foot or we should use bicycle. Clear? और noise pollution को कम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हॉर्न्स unnecessarily नहीं बजाने हैं। Clear? Now let's recap the important points of the chapter. First of all, we have done transport. What is transport? The means by which people and goods can be moved from one place to another is called transport. फिर हमने 3 different ways of transport किया, air transport, water transport and land transport. और जो जर्नी हम वाटर से करते हैं that is called voyage and the journey by air is called flight. Beta, this was all about chapter 10. You have to read the chapter thoroughly to understand the concept, and also you have to write down new words in your notebooks. Okay? Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Thank you. Bye bye.